Good morning, students. Now we will have question number 4 for today. It consists of 15 parts. So we have to check which of the following AP एक सीरीज दी हुई है. In this series we have to check ये AP है या नहीं. We have to find the common difference D and 3 more terms. जो write 3 more terms, उससे जो next 3 terms हैं वो भी लिखनी है. So let me see question number 4. First part is, now the series is given 2, 4, 8, 16. So if I call it as A1, this is A2, A3, A4. So what is common difference? Common difference is D, which is, और D से ही हमें चेक करके पता लगेगा कि D जो है वो यूनिफॉर्म, इट इज़ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेम है सीरीज़ में या नहीं. सो इट इज़ A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, 2, देन A3, दिस इज़ 8 माइनस 4, 4. सो एक डिफरेंस तो आ रहा है 2 और एक डिफरेंस आ रहा है 4. सो द डिफरेंस इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द सीरीज़. पहली 2 टर्म 3 टर्म्स में ही नहीं फॉलो हो रहा. सो इट मीन्स A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. सो दिस विल नॉट फॉर्म AP. फॉर ए सीरीज टू बी इन AP, द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस शुड बी कॉमन. Means the difference of succeeding and preceding term should be same throughout the series. Then the third part is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2 and minus 7.2. So if we call this minus this, A2 minus A1, minus 3.2 minus 1.2, ये प्लस हो गया. So it is minus 3.2 plus 1.2 is minus 2. फिर A3 minus A1, A3 minus A2, minus 5.2 minus 3.2. So if we check, ये minus minus plus हो गया, minus 5.2 plus 3.2 again minus 2. So it means दोनों differences जो हैं वो बराबर आ गए. सेकेंड से और फर्स्ट टर्म का, थर्ड और सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है दे आर इक्वल. सो येस दे विल फॉर्म AP. अब हमें 4 टर्म्स जो दे रखी हैं, वी हैव टू कैलकुलेट 5, 6 एंड 7. सो व्हाट इज़ T5? फिफ्थ टर्म क्या होगी? A प्लस 4D. A इज़ माइनस 1.2 प्लस 4, D इज़ माइनस 2, कॉमन डिफरेंस. सो ये हो गया माइनस 1.2 माइनस 8, तो होगी माइनस 9/2. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस 7/2, अगली माइनस 9.2, नेक्स्ट माइनस 11.2, नेक्स्ट माइनस 13.2. सो यू कैन राइट डायरेक्टली और यू कैन कैलकुलेट टर्म वाइज. 6 टर्म होगी A प्लस 5D. सो A इज़ माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, 5 2 ज़ा माइनस 10 हो गया, ये हो गया माइनस 11.2. Similarly A7, A plus 6D minus 1.2 plus 6 into minus 2, minus 12 हो गया, minus 12 minus 1.2 minus 13.2. So next 3 terms are minus 9/2, minus 11.2, minus 13.2. Or you can write it directly here. Then one more part, 8th part is important. Now if you see in the video of PPT, I told you that 5, 5, 5, 5, 5. This is AP with common difference 0. As I told you that the common difference can be negative. अगर सीरीज़ हमारी डिक्रीजिंग में है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है. जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 हो गया. तो कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0. So 8th question, if you see, the common difference is 0. माइनस 1/2 अगर सीरीज सेम ही रहती है, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन. So common difference is this minus this.
दिस इज 0, -1/2 माइनस -1/2 +1/2 हो गया, ये हो गया 0। सो कॉमन डिफरेंस इज 0। वैसे भी आप देखो दिस माइनस दिस या 5 - 5 जैसा पीपीट में था, तो दिस इज इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस 0। तो अगली टर्म भी यही होगी -1/2, उससे अगली भी -1/2, उससे अगली भी -1/2। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज 9th part 13927. If you see the common difference, it is 3 minus 1, which is 2, 9 minus 3, that is 6. So common difference जो है, जो difference है वो that is not common, means एक बार 2 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है. So this series does not form AP. Then you can see question number 12. This question is important and asked 2-3 times in the exam. Under root 2, under root 8, under root 18, under root 32 and so on. देखने से लगता है कि ये AP में नहीं होगा. So let we factorize and then we calculate. Under root 2, 8 can be written as 4 into 2, 18, 9 into 2, 32, 16 into 2. I just make the factors of the prime factors of the number. Now this is under root 2 as it is. It can be written as 2 under root 2. Under root 4 है, बाहर आके 2 रह गया. अंडर रूट 9 सिमिलरली 3 रूट 2 बन गया, बाहर आके 3 हो गया. अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 हो गया, 4 रूट 2 हो गया. सो नाउ आवर सीरीज विद फैक्टराइजेशन विल बिकम अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2. नाउ a2 माइनस a1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 2 आ गया. a3 माइनस a2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 आ गया. सो इफ़ यू चेक द डिफरेंस इज सेम. डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग टर्म to the preceding term, succeeding term to the preceding term is same. So therefore they form AP. Then we have to write 3 more terms. If it is in AP, we have to write 3 more terms. So 3 more terms are T5. 4 तो दे रखी थी. फिफ्थ टर्म होगी A + 4D. या आप वैसे भी अगर कैलकुलेट करना चाहो डायरेक्ट यू कैन राइट रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, अगली आ गई 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2. और यू कैन कैलकुलेट बाय फॉर्मूला A + 4D. A है रूट 2, 4 एज इट इज, D है रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2. सीरीज़ में जैसे है उसको बनाने के लिए 5 को हम अंदर ले गए, 25 इंटू 2 अंडर रूट 50. सिमिलरली T6, A + 5D, अंडर रूट 2 प्लस 5 रूट 2, 6 रूट 2. 6 रूट 2 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2 सारे का रूट, अंडर रूट 72. देन T7, A + 6D, अंडर रूट 2 प्लस 6 रूट 2, 7 रूट 2. इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2 सारे का रूट. दिस इज अंडर रूट 98. सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 and under root 98. Next is 15th part. If you see, देखने से लगता है ये भी AP में नहीं होगा, but when we calculate it or we can take the values of square, we will find that this will be in AP. Let me check. 1 square, 5 square, 7 square, 73 and so on. So 1 square is 1, 5 square 25, 7 square 49, 73 as it is and so on. Let me check the difference. 25 minus 1, 24, 49 minus 25, 24, 73 minus 49, 20. So the difference is common and remains same throughout the series. So therefore this series is in AP. Then we are having नेक्स्ट 4 टर्म्स. नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए या तो आप इसी में 24 ऐड करके यहाँ लिख दो,
फिर जो आएगा उसमें 24 ऐड कर दो, फिर जो आएगा उसमें 24 ऐड कर दो, और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला A5 फिफ्थ टर्म, 4 दे रखी हैं, 1 2 3 4, देन फिफ्थ टर्म विल बी A + 4D, यानी कि A is 1 4, D is 24, so 96 + 1 97, then A6 A + 5D, 1 + 5 × 24, दिस इज़ 120 + 1 121, तो जैसे सीरीज़ का ऑर्डर है 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। देन सेवन्थ टर्म A + 6D, so it will become 1 + 6 × 24, this is 144 + 1 145, so next 3 terms are 97 121, उसको लिख दिया 11 स्क्वायर, क्योंकि हमारी सीरीज़ में बीच में कुछ टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर में लिखी हुई हैं, एंड 145, 97 11 स्क्वायर और 145 is the next 3 terms. Thank you.